آپ نے وعدہ کیا تھا نا خان جی، آپ مجھے اپنا نام دیں گے، وقت آ گیا اپنا وعدہ پورا کریں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ تم چاہ رہی ہو کہ ایک سردار ایک معمولی سی نوکرانی سے اب نکاح کرے؟ میں نے آج تک آپ کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف آپ کا نام لیا ہے۔ کم از کم اس طرح میری محبت کو ذلیل تو نہ کریں۔ رات کی تنہائی میں مدہوشی میں کیے ایسے وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی شیریں، بھول جاؤ۔ کیا مطلب بھول جاؤں؟ میں نے آج تک آپ کے اتنے راز رکھے ہیں، ایک اور سے ہی آپ بس مجھ سے نکاح کر لیں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ صاحب سے جان چھڑواؤ، میرے لیے کوئی مشکل بنائی نا تو میں تمہارا نکاح زرغون کے ساتھ کروا لوں گا، سمجھ رہی ہو؟ دھوپ میں چھپا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے جادوئی درخت کہتے تھے۔ 17 سالہ حمزہ ایک دن اس کے راز کو جاننے کے لیے وہاں پہنچا۔ درخت کے تنے پر اسے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا نظر آیا: جو دوسروں کو سایہ دیتا ہے اسے خود کبھی دھوپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کسان دھوپ میں تھکا ہوا بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اسے درخت کے سائے میں بٹھایا اور پانی دیا۔ اگلے دن اس نے مسافروں کے لیے درخت کے قریب پانی کا مٹکا رکھ دیا۔ پھر اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسی جگہ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا دی جہاں وہ گرمی سے بچ کر پڑھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں درخت لگانے لگے۔ چند سال بعد گاؤں کے آس پاس سینکڑوں درخت اگ چکے تھے۔ ایک بزرگ نے حمزہ سے پوچھا: اب بتاؤ، اس پرانے درخت کا جادو کیا تھا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا: شاید وہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ اگر ہم دوسروں کے لیے سایہ بن جائیں تو دنیا خود ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سبق: دوسروں کے لیے آسانی اور سکون پیدا کرنے والے اعمال معاشرے میں بھلائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ستارہ ستارہ۔ دھوپ میں چھپا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے جادوئی درخت کہتے تھے۔ 17 سالہ حمزہ ایک دن اس کے راز کو جاننے کے لیے وہاں پہنچا۔ درخت کے تنے پر اسے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا نظر آیا: جو دوسروں کو سایہ دیتا ہے اسے خود کبھی دھوپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کسان دھوپ میں تھکا ہوا بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اسے درخت کے سائے میں بٹھایا اور پانی دیا۔ اگلے دن اس نے مسافروں کے لیے درخت کے قریب پانی کا مٹکا رکھ دیا۔ پھر اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسی جگہ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا دی جہاں وہ گرمی سے بچ کر پڑھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں درخت لگانے لگے۔ چند سال بعد گاؤں کے آس پاس سینکڑوں درخت اگ چکے تھے۔ ایک بزرگ نے حمزہ سے پوچھا: اب بتاؤ، اس پرانے درخت کا جادو کیا تھا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا: شاید وہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ اگر ہم دوسروں کے لیے سایہ بن جائیں تو دنیا خود ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سبق: دوسروں کے لیے آسانی اور سکون پیدا کرنے والے اعمال معاشرے میں بھلائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ستارہ ستارہ۔ دھوپ میں چھپا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے جادوئی درخت کہتے تھے۔ 17 سالہ حمزہ ایک دن اس کے راز کو جاننے کے لیے وہاں پہنچا۔ درخت کے تنے پر اسے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا نظر آیا: جو دوسروں کو سایہ دیتا ہے اسے خود کبھی دھوپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کسان دھوپ میں تھکا ہوا بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اسے درخت کے سائے میں بٹھایا اور پانی دیا۔ اگلے دن اس نے مسافروں کے لیے درخت کے قریب پانی کا مٹکا رکھ دیا۔ پھر اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسی جگہ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا دی جہاں وہ گرمی سے بچ کر پڑھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں درخت لگانے لگے۔
चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था। हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी, जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था। हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी, जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था। हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी, जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था। हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था।
حمزہ نے اسے درخت کے سائے میں بٹھایا اور پانی دیا۔ اگلے دن اس نے مسافروں کے لیے درخت کے قریب پانی کا مٹکا رکھ دیا۔ پھر اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسی جگہ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا دی جہاں وہ گرمی سے بچ کر پڑھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں درخت لگانے لگے۔ چند سال بعد گاؤں کے آس پاس سینکڑوں درخت اگ چکے تھے۔ ایک بزرگ نے حمزہ سے پوچھا، اب بتاؤ اس پرانے درخت کا جادو کیا تھا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا، شاید وہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ اگر ہم دوسروں کے لیے سایہ بن جائیں تو دنیا خود ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سبق: دوسروں کے لیے آسانی اور سکون پیدا کرنے والے اعمال معاشرے میں بھلائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ستارہ ستارہ، دھوپ میں چھپا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے جادوئی درخت کہتے تھے۔ 17 سالہ حمزہ ایک دن اس کے راز کو جاننے کے لیے وہاں پہنچا۔ درخت کے تنے پر اسے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا نظر آیا، جو دوسروں کو سایہ دیتا ہے اسے خود کبھی دھوپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کسان دھوپ میں تھکا ہوا بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اسے درخت کے سائے میں بٹھایا اور پانی دیا۔ اگلے دن اس نے مسافروں کے لیے درخت کے قریب پانی کا مٹکا رکھ دیا۔ پھر اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسی جگہ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا دی جہاں وہ گرمی سے بچ کر پڑھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں درخت لگانے لگے۔ چند سال بعد گاؤں کے آس پاس سینکڑوں درخت اگ چکے تھے۔ ایک بزرگ نے حمزہ سے پوچھا، اب بتاؤ اس پرانے درخت کا جادو کیا تھا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا، شاید وہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ اگر ہم دوسروں کے لیے سایہ بن جائیں تو دنیا خود ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سبق: دوسروں کے لیے آسانی اور سکون پیدا کرنے والے اعمال معاشرے میں بھلائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ستارہ ستارہ، دھوپ میں چھپا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے جادوئی درخت کہتے تھے۔ 17 سالہ حمزہ ایک دن اس کے راز کو جاننے کے لیے وہاں پہنچا۔ درخت کے تنے پر اسے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا نظر آیا، جو دوسروں کو سایہ دیتا ہے اسے خود کبھی دھوپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کسان دھوپ میں تھکا ہوا بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اسے درخت کے سائے میں بٹھایا اور پانی دیا۔ اگلے دن اس نے مسافروں کے لیے درخت کے قریب پانی کا مٹکا رکھ دیا۔ پھر اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسی جگہ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا دی جہاں وہ گرمی سے بچ کر پڑھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں درخت لگانے لگے۔ چند سال بعد گاؤں کے آس پاس سینکڑوں درخت اگ چکے تھے۔ ایک بزرگ نے حمزہ سے پوچھا، اب بتاؤ اس پرانے درخت کا جادو کیا تھا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا، شاید وہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ اگر ہم دوسروں کے لیے سایہ بن جائیں تو دنیا خود ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سبق: دوسروں کے لیے آسانی اور سکون پیدا کرنے والے اعمال معاشرے میں بھلائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ستارہ ستارہ، دھوپ میں چھپا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے جادوئی درخت کہتے تھے۔ 17 سالہ حمزہ ایک دن اس کے راز کو جاننے کے لیے وہاں پہنچا۔ درخت کے تنے پر اسے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا نظر آیا، جو دوسروں کو سایہ دیتا ہے اسے خود کبھی دھوپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کسان دھوپ میں تھکا ہوا بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اسے درخت کے سائے میں بٹھایا اور پانی دیا۔ اگلے دن اس نے مسافروں کے لیے درخت کے قریب پانی کا مٹکا رکھ دیا۔ پھر اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسی جگہ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنا دی جہاں وہ گرمی سے بچ کر پڑھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں درخت لگانے لگے۔ چند سال بعد گاؤں کے آس پاس سینکڑوں درخت اگ چکے تھے۔ ایک بزرگ نے حمزہ سے پوچھا، اب بتاؤ اس پرانے درخت کا جادو کیا تھا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا، شاید وہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ اگر ہم دوسروں کے لیے سایہ بن جائیں تو دنیا خود ہمارے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سبق: دوسروں کے لیے آسانی اور سکون پیدا کرنے والے اعمال معاشرے میں بھلائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ستارہ ستارہ، دھوپ میں چھپا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے جادوئی درخت کہتے تھے۔ 17 سالہ حمزہ ایک دن اس کے راز کو جاننے کے لیے وہاں پہنچا۔
दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की जरूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी, जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी, जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी, जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी, जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा,
धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी खत्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की जरूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा। धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी खत्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की जरूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा। धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी खत्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की जरूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा। धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी खत्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की जरूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला,
शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ, इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया।
फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया, जो दूसरों को साया देता है, इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं, तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया,
जो दूसरों को साया देता है इसे खुद कभी धूप से डरने की ज़रूरत नहीं। हमजा ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में थका हुआ बैठा था। हमजा ने उसे दरख्त के साए में बिठाया और पानी दिया। अगले दिन उसने मुसाफिरों के लिए दरख्त के करीब पानी का मटका रख दिया। फिर इसने गांव के बच्चों के लिए उसी जगह एक छोटी सी बैठक बना दी जहां वो गर्मी से बचकर पढ़ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दूसरे लोग भी वहां दरख्त लगाने लगे। चंद साल बाद गांव के आसपास सैकड़ों दरख्त उग चुके थे। एक बुजुर्ग ने हमजा से पूछा, अब बताओ इस पुराने दरख्त का जादू किया था? हमजा मुस्कुराया और बोला, शायद वो हमें ये सिखाने आया था कि अगर हम दूसरों के लिए साया बन जाएं तो दुनिया खुद हमारे लिए ठंडी हो जाती है। सबक: दूसरों के लिए आसानी और सुकून पैदा करने वाले अमाल मुआशरे में भलाई का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सितारा सितारा, धूप में छुपा साया। एक छोटे से गांव में एक पुराना दरख्त था जिसका साया कभी ख़त्म नहीं होता था, हत्ता कि दोपहर की तेज़ धूप में भी इसके नीचे ठंडी हवा चलती रहती। गांव के लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे। 17 साला हमजा एक दिन इसके राज को जानने के लिए वहां पहुंचा। दरख्त के तने पर उसे एक छोटा सा जुमला लिखा नजर आया,